Good morning, students. Chapter 6 Judiciary. Today we will discuss about topic 2 independence of judiciary. In last video we discussed why do we need the independent judiciary. Today we will try to understand the meaning of independence of judiciary. The other organs rather than judiciary are executive and legislature. So other organs of government, that is executive and legislature, must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice. It means जो बाकी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो जुडिशरी के फंक्शंस को स्टॉप ना करें, उनमें इंटरफेयर ना करें, वो उन्हें जस्टिस करने से ना रोके. अगर उन्हें उनके फंक्शनिंग को वो प्रॉब्लम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे. द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, these are the organs of government. They should not interfere with the decision of judiciary, and they also should not interfere in the decision of judiciary. Judiciary जो भी decision ले उसमें वो interfere ना करें. In that situation, judiciary will be able to take the decision without any fear. Judges must be able to perform their functions without fear or favor. So if all these features, all these rules are following, then we can say that judiciary is independent. It does not imply arbitrariness or an absence of accountability. इसके साथ जरूरी है जो हमारी अगर हम कह रहे हैं we are saying that there should be no interfere in the functioning of judiciary, it means we are not saying that जुडिशरी मस्ट बी आर्बिट्रेरी, कि जुडिशरी भी आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए और जुडिशरी की भी एक अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है. देयर शुड बी नो एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मस्ट इंश्योर बाय द जुडिशरी. नाउ जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द थ्री कंडीशन for independence of judiciary. Judiciary must be accountable to the constitution and it must follow the democratic tradition. Third, it also work according to the people of the country. They should also take care of the needs or wishes of the people of the country. How can the independence of judiciary be provided and protected? How can we enhance the independence of judiciary? Indian Constitution has ensured the independence of judiciary through the following measures. First, legislature is not involved in the process of appointment of judges. Judiciary में different courts है बेटा. Judiciary involve the different types of court from lower court to higher Supreme Court. And judges, major part of the courts, they are the most important person in the courts. They decide whether the person or the organ or the institution is guilty or not. While appointment the judges, legislature should not involved. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस किए गए उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है जजेस की अपॉइंटमेंट में. अगर लेजिस्लेचर की इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी अपॉइंटमेंट में तो शायद जजेस लेजिस्लेचर को से कहीं ना कहीं उनसे अफेक्टेड हो सकते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. इसीलिए लेजिस्लेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया है. पार्टी पॉलिटिक्स डज नॉट इन्वॉल्व. इवन पार्टी पॉलिटिक्स ऑल्सो शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑफ द पर्सन or his her political loyalty should not be considered when judges are appointing. That time the essential qualifications such like that he should be for 10 years for as a lawyer and other conditions which are mentioned according to the law. His political opinions or political loyalty should not consider as a criteria for his appointment.
उसकी क्या कंडीशंस है, क्या उसने LLB की हुई है नहीं की हुई है जज अपॉइंट करने के लिए, क्या वो ऐसे लॉयर उसने काम किया है, ये सारी कंडीशंस एज ए क्राइटेरिया कंसिडर की जाए, ना कि वो किसी जिस पार्टी की सरकार है उसके प्रति लॉयल है, इसको क्राइटेरिया ना माना जाए वाइल अपॉइंटिंग द जजेस इन आ कंट्री। और इंडिया में ऐसा ही किया गया। इन आवर कंट्री पॉलिटिकल लॉयल्टी नॉट कंसिडर एज द क्राइटेरिया टू अपॉइंट आ जज। नेक्स्ट, द जजेस हैव अ फिक्स टेन्योर। हमारी कंट्री में जजेस की फिक्स टेन्योर होती है, फिक्स टर्म है, अपॉइंट होने के बाद उससे पहले उसे हटाना बहुत डिफिकल्ट है। नॉट इजी टू रिमूव देम बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म्स। अगर जजेस को हटाना आसान होता तो शायद जितनी भी पार्टीज हैं उसके खिलाफ, जब भी पार्टी की जिस रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई जज कोई भी वर्डिक्ट देगा तो शायद उसे हटा दिया जाता। बट इन आवर कंट्री इट इज नॉट इजी टू रिमूव अ जज, द प्रोसीजर इज वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई देयर इज सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी में जितने मेंबर्स हैं, जजेस हैं, उन्हें एक सिक्योरिटी फीलिंग होती है और वो कहीं ना कहीं वो जस्टिस कर पाते हैं और वो इंडिपेंडेंट रह पाते हैं। जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जजेस की सैलरीज के लिए, बाकी वेजेस के लिए, जुडिशरी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड नहीं है। देयर फाइनेंशियल source of revenue clearly mentioned in the constitution. Even action and decisions are immune from the personal criticism. जितने भी जुडिशरी द्वारा जितने डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, उन्हें पर्सनल लेवल पर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। किसी भी जज को क्रिटिसाइज करना अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कैन पेनलाइज द गिल्टी। यदि कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है तो उसे पनिशमेंट भी दे सकता है, उसके खिलाफ कोई जुर्माना भी ला सकता है। दिस पावर इज गिवन टू द जजेस, सो जज कैन पेनलाइज द गिल्टी। सो वी कैन से दैट इन दिस सिचुएशन वी कैन इमेजिन द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस। इन आवर पार्लियामेंट द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस एक्सेप्ट केवल व्हेन the removal procedure of a judge is going on in the parliament can be take place. Otherwise no conduct, no meeting, no discussion can be take place regarding the conduct of the judges. That's why, because of all these provisions which are mentioned in our constitution, the judges or judiciary can function without fear in our country. Because of all these provisions, we can say that judiciary of India is independent. That's all for today's video.